Hello students of class 5. Welcome to the digital class of Dipti Visual School. Today our subject is history. Chapter 17, that is our chapter name, Some People Never Die. Homework card. See here. First of all, you have to write on the top top of your page that homework. Chapter name, number, name. That you have to write part 2. Worksheet A1. Okay, this one you have to write over there, and the date should be mentioned. Now, first of all, question B of your book, that is answer the following questions. There you have to write about it. See here, first question is, in what ways do great personalities inspire us? कैसे हमें great personalities है जो हमें कैसे प्रेरणा देती है, ठीक है, इंस्पायर करती है. So great personalities have faced many difficulties. उन्होंने भी बहुत सारे देखे हैं, डिफिकल्टीज फेस की है, बट अचीव सक्सेस एंड ग्लोरी बाय देयर करेज, विल पावर, perseverance and virtue. Their ambition inspires us to excel and to be our best in our respective fields. यानी कि उनके जीवन से हम लोग प्रभावित होते हैं और उनसे हम लोग क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं. बहुत कुछ हमारे जिंदगी में प्रेरणा लेते हैं और उसको हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये था हम लोगों का आंसर. नाउ क्वेश्चन 2, इन विच फील्ड डिड अमर्त्य सेन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड? यानी कि अमर्त्य सेन ने क्या कौन से फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है विश्व में. ओके, सो लेट्स सी. अमर्त्य सेन मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, यानी कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाया गया है, इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स हियर इसकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर हमने देखा विकसित किया गया है क्या, इकोनॉमिक्स के अर्थनीति से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारा काम किया. ओके, लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3. हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड व्हाई? सो ऑल ऑफ यू राइट आंसर विथ मी. ओके, student, you should know the full form of APJ. Okay, so you have to write this. Abul Pakir Jain ul Abdin. Okay, this is the pronunciation of this term, that means Abdul. Now, who is known as the missile man of India and why? Dr. Abul Pakir Jain ul Abdin Abdul Kalam is known as the missile man of India. क्योंकि because he successfully made Pokhran second nuclear test over there. वहाँ पर उन्होंने किया, सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पर किया, जिसके कारण वहाँ उनको बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ओके, question number 4. Why was Sonal Mansi conferred many awards and honors? Okay, here you see Sonal Mansi was conferred several, here you write all, सबका हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए. Several awards
preserving the rich cultural and traditional heritage of India. Here, see here, why was Sonal Mansikh conferred many awards and honors? So Sonal Mansikh was conferred several awards for preserving the rich cultural and traditional heritage of India. यानी कि वो हमारे कल्चरल यानी सांस्कृतिक एंड ट्रेडिशनल दैट इज द जो ट्रेडिशनल जो हमारे मतलब चलता आ रहा है, जो रिचुअल्स है, हेरिटेज जो हमारे विरासत में हम लोगों को मिला है, उस चीज को वो क्या करती गई है, उसने प्रेजेंट किया है सबके सामने. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्लासिकल डांस के रूप में उन्होंने अपने कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रेजेंट किया है हमारे इंडिया के सामने या इंटरनेशनली ऑल्सो. ओके, सो ये हो गया हम लोगों का आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6, दैट इज इन व्हाट वेज डिड अमर्त्य सेन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ पीपल. यू ऑल राइट आंसर देयर. That is was the pioneer in the field of human rights. मतलब होता है मानव अधिकार, rights including what? Fundamental freedoms. फंडामेंटल फ्रीडम्स मतलब क्या है बच्चों? फंडामेंटल फ्रीडम्स होता है मौलिक अधिकार. इसी का दूसरा पॉइंट लिखो. He emphasized on development by improvement of health and well-being of people, including food, clothing, housing, medical care and free and
compulsory elementary education. In order to end poverty, deprivation, and starvation. So that's all. So let's see what else. In what ways did Amartya Sen contribute to development of people? तो हमने देखा कौन से क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया अमर्त्य सेन ने, जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को विकसित करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे अमर्त्य सेन वाज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर हम देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए वो बहुत काम किए, इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीडम्स को लेकर, यानी कि मौलिक अधिकार को लेकर उन्होंने, और मानव राइट के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे देखो यहाँ पर दिखाया, उन्होंने जोर दिया, डी एम्फसाइज मतलब होता है जोर देना, उन्होंने जोर दिया ऑन डेवलपमेंट, यानी कि विकास के ऊपर, बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग क्या, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 14 साल तक यानी कि 14 साल तक के बच्चों को एकदम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंड व्हाट, इसलिए ये किया गया है, एंड द पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड स्टार्वेशन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. So we'll meet in the next video with the objectives question answer. Okay, all of you have to write all these questions 1, 2, 3, 4 and 6 questions in your copy. Do write all these question answer in copy. Your homework you note down there. Do all today's classwork to all today's classwork from question 1 to 4 and questions in and them, and learn and read chapters. And here do all today's question classwork from question 1 to 4 and question 6 in copy, and learn and read chapter 17. So that's all for today. We will meet in the next video with your objective question answers. Thank you all.